آداب عرض ہے MCN اردو نیوز میں آپ کا خیر مقدم۔ ناظرین، میں ہوں سمرین ناز۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھانے سے پہلے آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر۔ ضلع بھر کی 216 گرام پنچایتوں کے لیے جملہ 3,04,361 مرد و خواتین نے کی رائے دہی۔ ووٹوں کی گنتی 20 دسمبر کو۔ بڑھنے لگی ہے امیدواروں کی دل کی دھڑکنیں۔ اقلیتی حقوق دن کی مناسبت سے شہر کے تعلیمی اداروں میں منعقد کیے گئے پروگرامز اور طلباء میں پیدا کی گئی بیداری۔ سماجی تنظیموں نے اقلیتوں کے تئیں حکومت کے رویے پر کیا اظہار افسوس۔ بے گھر افراد کو اپنے خوابوں کا مکان پانے مل رہا ہے ایک اور موقع۔ 19 دسمبر سے 20 جنوری کے درمیان داخل کر سکتے ہیں PMY کے تحت درخواستیں۔ میونسپل کمشنر ڈاکٹر چودھری نے دی اطلاع۔ اور برسر اقتدار BJP قائدین کی جانب سے قومی رہنماؤں سے متعلق دیے جا رہے متنازع بیانات سے عوام میں بے چینی۔ امبیڈکر وادی مظالم مخالف ایکشن کمیٹی کی جانب سے نکالا گیا شہر میں مورچہ اور بد زبان قائدین کے خلاف سخت کارروائی کا کیا گیا مطالبہ۔ اب خبریں تفصیل سے۔ گزشتہ روز ضلع بھر گرام پنچایت انتخابات کے لیے رائے دہی مکمل ہو گئی۔ کل 20 دسمبر کو ووٹوں کی گنتی کے بعد نتائج ظاہر کر دیے جائیں گے۔ آیا رہے کہ ضلع بھر میں کل 216 گرام پنچایتوں کے انتخابات کے لیے گزشتہ روز 18 دسمبر کو ووٹ ڈالے گئے۔ انتخابات چند ایک جزوی واقعات کو چھوڑ کر بحیثیت مجموعی پرامن ماحول میں اختتام کو پہنچے۔ ضلع اورنگ آباد کے تعلقہ جات نے تعلقہ اورنگ آباد میں 35 میں سے 33 گرام پنچایتوں کے لیے رائے دہی ہوئی۔ اسی طرح تعلقہ پیٹھن میں 22، پھلمری میں 18 میں سے 17، سلوڑ میں 18، سوئے گاؤں میں 5 میں سے 4، کنڑ تعلقے میں 51 میں سے 49، خلد آباد میں 10، ویجا پور 25 میں سے 24 اور تعلقہ گنگا پور میں 32 گرام پنچایتوں میں سے 31 کے لیے رائے دہی کی گئی۔ اس طرح ضلع بھر کی کل 216 میں سے 208 گرام پنچایتوں کے لیے ووٹ ڈالے گئے۔ ضلع بھر کے ان 208 گرام پنچایتوں کے لیے جملہ 3,04,361 رائے دہندگان خواتین و مردوں نے ووٹ ڈالے، جبکہ ووٹنگ کا تناسب 86.55% رہا۔ تعلقہ پیٹن کے برکن نے 81.67% ووٹنگ ہوئی۔ بتایا جاتا ہے کہ یہاں کے چناؤ میں ضلع کے رابطہ وزیر سندیپان بھومرے کا وقار داؤ پر لگا ہوا ہے۔ دریاسنا برکن نے بڑے جوش و خروش سے رائے دہی کی گئی، یہاں تک کہ ایک نئے دولہے میاں شادی کے منڈپ سے پولنگ بوتھ پہنچے اور اپنا حق رائے دہی استعمال کیا۔ کل 20 دسمبر کو تمام تر ووٹوں کی گنتی کے بعد نتائج ظاہر کر دیے جائیں گے، اس طرح کی اطلاع ذرائع نے دی ہے۔ مائنرٹی رائٹس ڈے کی مناسبت سے ایک پروگرام آج سر سید اردو و مراٹھی اسکول میں منعقد کیا گیا۔ اسکول کے سیکریٹری فیاض حسین زیدی کی صدارت میں منعقدہ اس تقریب میں سر سید اردو اسکول کی صدر معلمہ قاضی نکھت فاطمہ، مراٹھی اسکول کے پرنسپل محمد وحید الدین صدیقی مہمان خصوصی کی حیثیت سے شریک تھے۔ پروگرام کے آغاز پر جماعت پنجم کے طالب علم نے قرآن کریم کی چند آیات تلاوت کی۔ اس کے بعد دیگر اسٹوڈنٹس نے مختلف موضوعات پر پراثر تقاریر پیش کی۔ بعد ازاں صدر جلسہ فیاض حسین زیدی نے اقلیتوں کے حقوق پر تفصیلی روشنی ڈالی۔ اسی طرح دونوں ہی میڈیم کے اسکول کے ہیڈ ماسٹرز نے بھی طلبہ کی رہنمائی کی۔ پروگرام کی نظامت سید مختار الدین نے کی، جبکہ شکریہ کی رسم محمد شاہد نے ادا کی۔ اس پروگرام کو کامیاب بنانے میں اسکول کے تدریسی و غیر تدریسی عملے نے اہم رول ادا کیا۔ The Minorities' Rights Day in India was first observed in the year 2013 and the date was set to be 18 December. This day is observed to preserve the right of the minority group in India. The day is also celebrated to bring better awareness and understanding about the country. The true hallmark of democracy prevailing in a country is DBMI, providing equal rights to minorities. مائنرٹی رائٹس ڈے کے موقع پر گزشتہ روز ایک پروگرام ڈاکٹر رفیق زکریا وومنس کالج کے احاطے میں رکھا گیا۔ کالج کے پرنسپل ڈاکٹر مختوم فاروقی کی صدارت میں منعقدہ اس پروگرام میں پروفیسر رضوان اللہ، کالج کی وائس پرنسپل ڈاکٹر ودیا پردھان اور پروفیسر تنمے پیٹنکر مہمانان خصوصی کی حیثیت سے شریک تھے۔ طالبات کی رہنمائی کرتے ہوئے پروفیسر رضوان اللہ نے انہیں دستور ہند سے ہمیں دیے گئے حقوق سے واقف کروایا۔ اسی طرح ڈاکٹر مختوم فاروقی نے اپنے صدارتی خطبے میں اقلیتی طلباء کے لیے حکومت و انتظامیہ کی جانب سے شروع کی گئی اسکیمات پر روشنی ڈال کر ساتھ ہی اس
बات पर भी सख्त अफसोस किया। मरकजी वजारत बराए अक़लियती बहबूद ने माइनॉरिटी स्टूडेंट्स को दी जाने वाली प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप अचानक से बंद कर दी। उन्होंने हुकूमत के इस इक़दाम से होने वाले नुकसान पर भी रोशनी डाल दी और मशवरा दिया कि इसके लिए सभी सियासी जमातों व समाजी व माली तंजीमों को मुश्तरका तौर पर हुकूमत से नुमाइंदगी करने की ज़रूरत है। बार्टी, सारथी और महाज्योति इदारे की तर्ज पर अक़लियती तलबा के लिए मार्टी नामी इदारा शुरू किया जाए। ये मुतालिबा मौलाना आज़ाद रिसर्च ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के ज़िम्मेदारान ने रियासती वज़ीर आला से किया। इस ज़िम्न में यौम अक़लियती हुकूक़ के मौके पर एक मेमोरेंडम ज़िला इंतज़ामिया की मारिफत हुकूमत को भिजवाया गया। मेमोरेंडम के जरिए मुतालिका तंजीम के ज़िम्मेदारान ने रियासती वज़ीर आला एकनाथ शिंदे और दिगर अरबाब मजाज को बताया कि माशरे के मुख्तलिफ तबक़ात को कौमी दायरे से जोड़ने और इन तबक़ात के नौजवानों को आला तालीम के मौक़े फराहम करवाने की गर्ज से बार्टी, सारथी और महाज्योति नामी इदारे चलाए जाते हैं, मगर अक़लियतों और बिलख़ुसूस मुसलमानों जिनकी पसमानदगी से मुताल्लिक़ हुकूमत की जानिब से तश्कील दिए गए मुख्तलिफ कमीशन ने अपनी रिपोर्ट हुकूमत के सुपुर्द की है और दिगर तबक़ात की तरह उन्हें भी दिगर सहूलतें फराहम करवाने की सिफारिश की है। उनकी तंजीम गुज़िश्ता कई दिनों से अक़लियतों के लिए मौलाना आज़ाद रिसर्च इंस्टीट्यूट के नाम से एक अलहदा इदारा शुरू करने का डिमांड कर रही है, मगर आज तक इस पर कोई पेशकदमी नहीं की गई। लिहाजा यौम अक़लियती हुकूक़ के मौके पर अक़लियतों के लिए मार्टी नामी इदारा शुरू करने का फैसला किया जाए। माशी तौर पर कमज़ोर ऐसे शहरियान जिनका सिटी में कहीं भी पुख्ता मकान नहीं है, उनके लिए हुकूमत की सबके लिए मकान नामी वज़ीर आज़म घरकुल योजना के तहत ज़मरा 3 में आने वाले शहरियान 19 दिसंबर से 20 जनवरी के दरमियान अपनी दरख्वास्तें दाखिल कर सकते हैं, जिसके लिए सभी 9 जोन दफातर में अलहदा सेल कायम किए गए हैं। ये इत्तला म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर डॉक्टर चौधरी ने MCN को दी। सर्वांसाठी घरे या संकल्पनेवर आधारित प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी घटक क्रमांक 3 खाजगी भागीदारीद्वारे परवडणाऱ्या घरांची निर्मिती करणे म्हणजे अफोर्डेबल हाऊसिंग प्रोजेक्ट। याच्यासाठी जे आपल्याकडे आता 2016 मध्ये काही जे इन्फॉर्मेशन आपल्याकडे कलेक्ट केली गेली होती ती व्हेरीफाय करण्यासाठी, त्याचबरोबरीने नवीन जी काही ॲप्लिकेशन्स ज्यांना जे लोक पात्र आहेत आणि अशा घरकुल घेण्यासाठी इच्छुक आहेत, अशा लोकांना सुद्धा पुन्हा अप्लाय करता यावं याच्यासाठी म्हणून आता आपण महानगरपालिकेमार्फत 1 महिना एक स्वतंत्र कॅम्पेन, सेपरेट कॅम्पेन घेतो आहोत की जिच्यामध्ये आपण जे हे व्यक्ती असतील ज्यांना या परवडणारी घरांसाठी अप्लाय करायचं आहे ते ऑनलाईन याच्यामध्ये अप्लाय करू शकतात। आपली जी महानगरपालिकेची वेबसाईट आहे तिथे आपण स्वतंत्र टॅब त्यांना अवेलेबल करून दिला आहे। तिच्यातले जो अर्जचा नमुना आणि तिथे कोणकोणते डॉक्युमेंट्स त्यांना सबमिट करायचे आहे ते सगळं नमूद केलं आहे। त्याचबरोबर ज्यांना ऑनलाईन अप्लाय करणं शक्य नाही आहे अशा लोकांनी आपल्या घराजवळचं जे झोन ऑफिस आहे त्या ठिकाणी ऑफलाईन सुद्धा ही जी सर्व कागदपत्रांसहित ते अप्लाय करू शकतात। या सर्व कागदपत्रांचा आम्ही स्क्रुटिनी करू आणि त्याच्यानंतर जी कोणी इच्छुक आहेत आणि घरकुलांसाठी पात्र आहे याचा एक स्वतंत्र डेटाबेस जो आहे तो महानगरपालिकेमार्फत आपण कंपाईल करत आहोत। सर्व माझ्या नागरिकांना हे आव्हान आहे की या परवडणाऱ्या घरांच्या PMAY अंतर्गत परवडणाऱ्या घरांसाठी जर आपल्याला अप्लाय करायचं असेल आणि आपण याच्यामध्ये पात्र असाल तर आपण या ऑनलाईन सिस्टीमद्वारे किंवा झोन ऑफिस मध्ये आपण हे ॲप्लिकेशन्स करू शकतात। आम्ही जो अर्ज स्वीकारताना हे परिपूर्ण अर्ज असणं हे आवश्यक आहे, कारण की जे जर डॉक्युमेंट्स नसतील किंवा जर एखादा पात्र नसलेला लाभार्थी जर याच्यामध्ये आला तर त्यांना आपल्या पुढे भविष्यामध्ये त्याची वगळणी करावी लागू शकते। तसं होऊ नये म्हणून परिपूर्ण अर्ज जो आहे तो सर्व जे इच्छुक नागरिक असतील त्यांनी याच्यामध्ये करावा। तर या 19 डिसेंबर पासून ही आपण प्रक्रिया सुरू करत आहोत। एक साधारणतः महिनाभर म्हणजे 20 जानेवारीपर्यंत आपण हे सर्व अर्ज स्वीकारणार आहोत। तर माझ्या सर्व शहरातल्या लोकांना आव्हान आहे की जास्तीत जास्त लोक जे याच्यामध्ये पात्र आणि इच्छुक आहेत त्यांनी याच्यामध्ये अप्लाई करा। अजीम रहनुमा से मुतालिक हद तक आमेज बयान देने वाले BJP कायदीन के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। इस मुतालिबे पर अम्बेडकरवादी अत्याचार विरोधी एक्शन कमेटी की जानिब से आज शहर में एक जुलूस निकाला गया और रियासती वज़ीर आला के नाम एक मेमोरेंडम इलाकाई इंतजामिया के सुपुर्द किया गया। मुजाहिरीन का कहना है कि अजीम रहनुमाओं से मुतालिक BJP कायदीन की जानिब से मुतनाज़ा बयानात देने का सिलसिला जारी है। इस तरह के मुतनाज़ा बयानात देने वालों में रियासती वज़ीर बराए आला व तकनीकी तालीम चंद्रकांत पाटिल, रियासती गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी,
प्रसाद लाड, राव साहब दानवे, सुधांशु त्रिवेदी, इन अफराद ने छत्रपति शिवाजी महाराज, महात्मा ज्योतिबा फूले, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, सावित्रीबाई फूले और करमवीर भाऊराव पाटिल इन रहनुमाओं से मुतालिक मुतनाज़ा बयानात दिए हैं, जिसकी वजह से माशरे के मुख्तलिफ तबक़ात की दिल आज़ारी हुई है। लिहाजा इन क़ायदीन की ज़बानों को लगाम देने के लिए इनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। इस ज़िमन में आज भड़कल गेट से डिविजनल कमिश्नरेट तक एक मोर्चा निकाला गया और रियासती वज़ीर आला एकनाथ शिंदे के नाम एक मेमोरेंडम इलाक़ाई इंतज़ामिया के सुपुर्द किया गया। ये एहतजाजी मोर्चा एक्शन कमेटी के तिंकर ओंकार, मिलिंदा भाड़े, रमेश खंडागड़े, अरुण बोडे, कृष्णा बनकर, संतोष भंगारे, विजय वाहुल और दिगर रहनुमाओं की क़यादत में निकाला गया। म्हणून आजची प्रमुख मागणी जर कोणती असेल तर चंद्रकांत पाटील यांच्यावरती अनुसूचित जाती संबंधानं जो ॲट्रॉसिटीचा कायदा आहे त्या ॲट्रॉसिटी कायद्याअंतर्गत त्यांच्यावरती गुन्हा दाखल करण्यात यावा आणि त्याची तात्काळ अंमलबजावणी करावी। या संबंधाने आमचं बोलणं झाल्याच्या नंतर आयुक्त साहेबांनी आम्हाला आश्वासित केलं की मी संबंधित जिल्ह्याचे आपले जे काही पोलीस अधीक्षक आहेत त्यांना या संबंधाच्या तात्काळ सूचना देऊन आपलं सारं म्हणणं महाराष्ट्र शासनाला कळवतो। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस के IQAC की जानिब से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी और सोसाइटीज डेवलपमेंट बजट के उन्वान पर एक सेमिनार मुनक़िद किया गया, जहां SV कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर मकरंद पैठनकर का खुसूसी लेक्चर रखा गया। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस के प्रिंसिपल डॉक्टर राजेंद्र सातपुते की सदारत में मुनक़िदा इस सेमिनार में IQAC के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर योगेंद्र टोपड़े, संदीप जोगदंड, IQAC की रुकन डॉक्टर अर्चना चावलेकर, डॉक्टर राम प्रसाद काले, डॉक्टर तलत खान, डॉक्टर अजय कुमार गांधी, डॉक्टर बापू थुरात, सीनियर प्रोफेसर डॉक्टर JS लाड़, डॉक्टर RA कुलकर्णी, डॉक्टर भगवान कामले और डॉक्टर लहाने मेहमानाने खुसूसी की हैसियत से शरीक थे। इस मौके पर अपने खुसूसी लेक्चर में डॉक्टर पैठनकर ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में इदारा जाती तरक्याती बजट की अहमियत से हाज़रीन को वाकिफ करवाया और कहा कि खुद की माली पोजीशन और ताकत को पहचान कर उसके मुताबिक डेवलपमेंट बजट तैयार किया जाए। न्यू एजुकेशन पॉलिसी से मुतालिक प्रोफेसर्स के शुकूक व शुबहात भी डॉक्टर पैठनकर ने दूर किए, जबकि डॉक्टर राजेंद्र सातपुते ने अपने सदारती खिताब में कहा कि इदारा जाती तरक्याती मंसूबा व बजट जल्द ही तैयार किया जाएगा और हुकूमत की जानिब से दी गई गाइडलाइन के मुताबिक ही आइंदा की कार्रवाई की जाएगी। प्रोग्राम की कंपेयरिंग प्रोफेसर विद्या एंगोले ने की, जबकि डॉक्टर वैशाली देशमुख के शुक्रिया पर सेमिनार का अख्तिताम अमल में आया। मायची चादर इस तजवीज़ पर अमल करते हुए 7,000 मुस्तहिक़ीन में ब्लैंकेट तक़सीम किए गए। ब्लैंकेट की इस तक़सीम में बदरा मारुति मंदिर खुलदाबाद के इलाके में ब्लैंकेटों की तक़सीम की गई। आया रहे कि जॉइंट चैरिटी कमिश्नर के औरंगाबाद दफ्तर की हिदायत पर रियासती चैरिटी कमिश्नर की तजवीज़ मोहब्बत की चादर यानी मायची चादर के उन्वान के तहत औरंगाबाद के जॉइंट चैरिटी कमिश्नर SG बयाने ने ज़िले की तमाम खिदमतगार तंजीमों, इदारों, इमदादी हस्पतालों, मनादिर व ट्रस्ट और दानशूर व सकी अफराद से अपील की थी कि सर्दी के इस मौसम में ज़रूरतमंदों की मदद की जाए। इस तजवीज़ व अपील पर मज़कूरा दफ्तर चैरिटी कमिश्नर को 7,000 ब्लैंकेट हासिल हुए थे। इन ब्लैंकेट की तकसीम अमल में आई ताकि कड़ाके की ठंडी में बेआसरा व मुस्तहिक़ अफराद को कम अज़ कम ठंड से बचाने के लिए कुछ जुज़वी मदद ही की जा सके। पैसे की बचत करो और किताबें खरीदो की अनोखी मुहिम के तहत रीड एंड लीड फाउंडेशन ने अनोखा व अमली इक़दाम किया और बच्चों में पैसे जमा करने गल्ले तकसीम किए। आया रहे कि रीड एंड लीड फाउंडेशन के तहत इस फाउंडेशन के रूहरवा और बानी सदर मिर्ज़ा अब्दुल क़य्यूम नदवी अपनी बिसात भरपूर कोशिश करते हैं कि तालीम व ताल्लुम और ज़ौक़ व मुताल्ला को आम किया जा सके। मौलाना ने बच्चों में ज़ौक़ व मुताल्ला पैदा करने के लिए मरियम मिर्ज़ा मोहल्ला मोहल्ला लाइब्रेरियों की तजवीज़ को आम किया और इस पर हुनूस अमल आवरी जारी है। किताबें खरीद कर पढ़ने और मुताल्ले के ज़ौक़ को बचपन ही से परवान चढ़ाने के लिए मौलाना एक नई तजवीज़ लेकर आए और इस तजवीज़ के तहत उन्होंने बच्चों से अपील की और उन्हें समझाया कि अपनी जेब खर्च से भी किफ़ायत शौरी करके वो किताबें ख़रीदने के लिए पैसे बचाएं। इस बचत के लिए मौलाना ने बच्चों में अपने फाउंडेशन के जरिए कम व बेश 5,000 बचत गल्ले तकसीम किए और बच्चों से अपील की है कि वो इन गल्लों में पैसे जमा करें और इनसे किताबें खरीदें, तो ये उनके लिए हुसूल इल्म का एक बेहतरीन जरिया साबित होगा और वो किताबों से अपना रिश्ता जोड़े रखने में कामयाब होंगे। औरंगाबाद में
में जारी एजुकेशन एक्सपो में फातिमा उर्दू प्राइमरी स्कूल किराड़पुरा के तलबा ने सोलर एनर्जी के फवायद पर बेहतरीन मॉडल पेश किए। आया रहे कि इस एक्सपो की सरगर्मियों में किराड़पुरा जैसी शहर की स्लम बस्ती में अपनी तालीमी खदमात की अंजामदही करने वाले फातिमा उर्दू प्राइमरी स्कूल के तलबा ने शमसी तवानाई, सोलर एनर्जी और इसके फ़वाइद व इस्तेमाल पर मबनी अपने तलबा का तैयार करदा बेहतरीन मॉडल पेश किया और अपनी इस पुरएतमाद पेशकश के ज़रिए नाजरीन से खूब दाद व तहसीन हासिल की। तलबा ने अपने इस मॉडल के ज़रिए कुदरत की लाजवाल नेमतों पर यकीन और इंसानी उपज के आर्जी होने का एहसास दिलवाया और कुदरत की नेमतों के बेहतर इस्तेमाल की जानिब रग़बत दिलवाई है। सब्जी तरकारी के किसानों को वाजिबी दाम नहीं मिल पा रहे हैं और लागत भी नहीं निकल पा रही है, जिसके सबब पैठन तालुके के वर्जी के किसान ने मायूस होकर अपने टमाटर रास्ते पर ही फेंक दिए। पैठन तालुके के मज़ाफ़त वर्जी के किसान कैलाश बोमले पर टमाटर की फसल में घाटा हो जाने के सबब वाकई बोमा बोम की नौबत आ गई और इस नौजवान किसान जिसने 1 एकड़ खेती पर टमाटर उगाए थे और जब उसकी फसल टमाटर की पहली खेप निकली तो उसने पैठन के बाज़ार में अपने टमाटर ले जाने का फ़ैसला किया। ताहम जब उसके 20 से 22 किलो के टमाटर के कैरेट को महज 30 से 50 रुपये का भाव मिलने की इसको तला हुई तो कैलाश बोमले इंतहाई मायूस हो गया और उसने अपना टमाटर का सारा माल आधे रास्ते ही में रोड पर फेंक दिया, जिसके सबब उसे माल बर्दारी का किराया भी अपनी जेब से भरना पड़ा। आया रहे कि इन दिनों सब्जी तरकारी के भाव गिर जाने के सबब किसान जो पहले ही फसलों की खराबी व इजाफी बारिश के नुकसान झेल रहे हैं, मज़ीद इस बाज़ार की मंदी से दिल बर्दाश्ता हो गए हैं और इसी मायूसी में वो कहीं अपनी फसलों पर ट्रैक्टर चला देते हैं या फिर इस तरह खुद अपने हाथों पैदावार बर्बाद कर देने की उन पर नौबत आन पड़ी है। मी कैलास राम बोमले, राहणार वर्जी, तालुका पैठण, जिल्हा औरंगाबाद। आज टोमॅटोला भाव न भेटल्यामुळे मी टोमॅटोचे 30 ते 40 कॅरेट रोडवर फेकलेले आहे। माझ्याकडे 1 एकरचा प्लॉट आहे। साधारणपणे 1 एकर प्लॉटला 50 ते 60 हजार रुपये खर्च एकरी झालेला आहे। शेतकऱ्याच्या मालाला कुठल्याही प्रकारचा भाव नाही आणि कधीच नसतो। गुज़िश्ता रोज ग्राम पंचायत इंतखाबात की रायदही के दौरान आलम में सहाफती नुमाइंदे से मारपीट का वाकया पेश आया। बताया जाता है कि मज़कूरा सहाफती नुमाइंदा आलम के एक पोलिंग बूथ पर हालात का जायजा लेकर खबरें इकट्ठा करने के इरादे से वहां पहुंचा था कि एक चुनावी फरीक के गिरोह की जानिब से उसके साथ मारपीट की गई। इस मुतालिक मज़ीद तफसीलात यूँ सामने आई है कि ताल्लुक़े के इस बड़े गांव आलम में गुज़िश्ता रोज़ रायदही का अमल पुरअमन तरीक़े से जारी था। इसी दौरान दोपहर के वक्त चुनावी खबर तहरीर करने की ग़रज़ से सहाफ़ती नुमाइंदे ज्ञानेश्वर चोपड़े मौके और रायदही का जायजा लेने एक बूथ पर गए तो एक उम्मीदवार के ग्रुप के कारकुनान ने चोपड़े के साथ मारपीट करके उन्हें ज़ख्मी कर दिया। चोपड़े को फौरी इब्तिदाई तिब्बी राहत दी गई और फिर उन्होंने बरोद बाजार पुलिस थाना पहुँचकर मारपीट करने वाले अफराद के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। इस वाक़े के बाद पुलिस ने गांव के चुनावी मराकज़ पर मज़ीद चुस्त दुरुस्त बंदोबस्त में इजाफा कर दिया। इसी तरह राय दहिंदगान व अवाम से अमन व अमान की अपील भी की गई। पुलिस में शिकायत के इंदराज के बाद सहाफ़ी को मज़ीद इलाज व मुआवजा फराहम किया गया। 18 रोजी ग्रामपंचायत निवडणुकीच्या अनुषंगाने आळंद येथे मतदान असल्याने दुपारी अंदाजे 1:30 ते 2 वाजेच्या सुमारास मतदान केंद्रावर झालेली मतदानाची टक्केवारीची माहिती घेण्यासाठी गेला असताना गावातीलच संतोष चोपडे हा तिथे आला व तू इथे काय करतोय असे विचारपूस करून धमकावले। मी त्याला असे सांगितलं की मी मतदानाची टक्केवारी घेण्यासाठी आला असता तर तो म्हणतो की तू मतदारांना वेगवेगळे काहीतरी कारणं सांगून तिथं उभं राहत आहे। त्यात वेळेस पोलीस कर्मचारी तिथे आले, त्यांनी त्याला बाजूला नेण्याचा प्रयत्न केला असता त्याचा दुसरा साथीदार पुंडलिक वामन चोपडे हा तिथं रांगेत उभ्या असलेल्या मतदानासाठी रांगेत उभ्या असलेल्या माझ्या आईच्या अंगावर धावून गेला। ते सोडण्यासाठी मी गेलो असता त्याने तिथून लोखंडी सळी माझ्या डोक्याला मारली, मला गंभीर माझे कपडे फाड़ले। शहर व अतराफ के नौजवान खिलाड़ियों को अपने हुनर दिखाने का मौका मिले, इस ग़रज़ से जीजीटी के मैदान पर इब्राहिम भैया पटेल हेल्थ फाउंडेशन की जानिब से एक रोज़ा
टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट मुनक्किद किया गया। वाज़ेह रहे कि नौजवान खिलाड़ियों को अपने हुनर दिखाने का मौका फराहम करवाने की ग़र्ज़ से ये टूर्नामेंट रखा गया था, जिसमें शहर व अतराफ की 10 से ज़ायद टीमों ने हिस्सा लिया। इस मुकाबले में जीत दर्ज करवाने वाली टीमों में इब्राहिम भैया पटेल के हाथों इनामत तकसीम किए गए। इस मौके पर ताहिर पटेल और इब्राहिम भैया हेल्प फाउंडेशन के दीगर अहदेदारान व जिम्मेदारान मौजूद थे। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। जिला भर की 216 ग्राम पंचायतों के लिए जुमला 3,04,361 मर्द व ख्वातीन ने की रायदही। वोटों की गिनती 20 दिसंबर को। बढ़ने लगी है उम्मीदवारों की दिल की धड़कनें। अक़लियती हुकूक़ दिन की मुनासिबत से शहर के तालीमी इदारों में मुनक़्क़िद किए गए प्रोग्राम्स और तलबा में पैदा की गई बेदारी। समाजी तंजीमों ने अक़लियतों के तय हुकूमत के रवैये पर किया इज़हार अफसोस। बेघर अफराद को अपने ख्वाबों का मकान पाने मिल रहा है एक और मौका। 19 दिसंबर से 20 जनवरी के दरमियान दाखिल कर सकते हैं PMY के तहत दरख्वास्तें। म्यूनसिपल कमिश्नर डॉक्टर चौधरी ने दी इत्तला। और बरसर इक़्तिदार BJP कायदीन की जानिब से कौमी रहनुमाओं से मुताल्लिक़ दिए जा रहे मुतनाज़ा बयानात से अवाम में बेचैनी। अम्बेडकर वादी मज़ालिम मुखालिफ एक्शन कमेटी की जानिब से निकाला गया शहर में मोर्चा और बदज़बान कायदीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई का किया गया मुतालबा। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यही खत्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं समीर नाज आपसे इजाज़त चाहती हूँ। खुदा हाफिज़।